براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے، وفاقی وزیر احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ نارمل زندگی کی طرف لے کر آ سکیں، لیکن یہ جو تباہی ہے یہ اس ایک تاریخی بارش کا نتیجہ ہے کہ جو ان لو لائنگ علاقوں میں بالخصوص ہوئی کہ جہاں پہ پانی کا نکاس بہت آہستہ ہے، اور اسی طرح بلوچستان کے پہاڑی سلسلوں سے جو بارش ہوئی اس نے جو فلیش فلڈنگ کی، ہیل ٹورنٹس آئے ساؤتھ پنجاب میں، ساؤتھ کے پی میں، نارتھ کے پی کے اندر، اور پھر نوشہرہ چارسدہ کے اندر بھی، یہ سب علاقے بہت وسیع تباہی پیدا ہوئی ہے۔ اور اب پانی کا ایک بہت بڑا سمندر ہے جو بلوچستان کے مشرقی اضلاع میں اور سندھ کے خاص طور پہ جو انڈس ریور کے مغرب میں علاقے اور اضلاع ہیں ان کے اندر ایک سمندر کی مانند کھڑا ہے، اور پورے اضلاع اننڈیٹڈ ہیں یا پانی کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا تقریباً 1/3 حصہ ان سیلابوں سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ 1500 لوگوں کی جانیں گئی ہیں، تقریباً 1.7 ملین سے زیادہ گھر جو ہیں ان کا نقصان ہوا ہے، 8 لاکھ کے قریب لائف سٹاک کا نقصان ہوا ہے، اور پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، چونکہ ہمارے وہ علاقے جو پاکستان کے لیے زرعی ضرورت پوری کرتے ہیں، سندھ کے، بلوچستان کے، جس میں سبزیاں اگتی ہیں، جہاں کپاس اگتی ہے، جہاں چاول کی فصل کھڑی تھی، اور جہاں پہ باغات تھے، ان سب کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس کے لیے دن رات تمام ایجنسیز، سرکاری وفاقی سطح کے اوپر، صوبائی سطح کے اوپر، مسلح افواج، پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، سب مل کر اپنی بہترین اور اپنی صلاحیت سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ سکیل اتنا بڑا ہے کہ شاید یہ ممکن نہیں ہے کسی ایک ادارے کے لیے کہ وہ اس پر فوری طور پہ پورا ہو دوسری سکے۔ جانب لاڑکانہ میں سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہاں سامنے آئی ہیں، اس میں صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اس وقت بھی سندھ کے میدانوں میں پانی بھرا ہوا ہے، اور متاثرین اب بھی گھروں کو جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور نہیں ان کو کوئی راستہ مل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس ساری مشکل سے ہم نے ایک قومی جذبے کے ساتھ ہمیں نکلنا ہے، ہم نے ایک قومی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ ایک انسانیہ ہے، ایک قومی عالمیہ ہے، اور قومی جذبے کے ساتھ ہمیں اس سے نمٹنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم خود چونکہ وہاں پر پانی میں گھرے ہوئے تھے، پورا ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن 75% پانی میں ہے، اور مختلف علاقے ایک دوسرے سے ایسے کٹ گئے کہ ہم ایک دوسرے کو مدد بھی نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ پھر ہیلی کاپٹرز کی خدمات حاصل کی، اس کے ذریعے لوگوں کو نکالا بھی گیا، اس کے ذریعے لوگوں کو راشن بھی پہنچایا گیا، اور بڑی مشکل سے ابھی کوئی ہفتہ ہوا ہے کہ ہم کچھ تحصیلیں جو ہیں وہ فوج والوں نے آ کر جو ان کا بیلی برج ہوتا ہے وہ لگا کر اس سے ہمارے رابطے بحال ہوئے۔ تو یقیناً ہر جگہ جو بھی موجود جہاں تھا وہی ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا، تو ہم رابطے میں رہے مسلسل، اور یہاں پر جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں روزمرہ کے حساب سے ہم ایک دوسرے کو حال احوال دے رہے تھے، ہم ان کو ہدایات بھی دیتے تھے، اور اس کے مطابق راشد صاحب اور ہماری صوبائی جماعت اور دوسرے صوبوں میں بھی ساتھی اپنے کام پہ چل پڑتے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ ساتھیوں نے بہت ہی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اور نہیں دیکھا یہ کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں اور ہم کس علاقے کی خدمت کر رہے ہیں اور کس انسان کی ہم خدمت کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھے بغیر انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے جو قابل تحسین ہے۔ میں اسی حوالے سے آج یہاں صوبہ سندھ میں آیا ہوں، اور مختلف اضلاع کا میں جائزہ بھی لینا چاہتا ہوں، اور یقیناً اس حوالے سے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بھی پھر بات ہوگی کہ کس طرح وہ لوگوں کی بحالی کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور کس طرح ان متاثرین کی صورتحال کو مینیج کر رہے ہیں۔
बहुत शुक्रिया जी। जी सवाल अगर कोई है। सर मेरा सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुतासरीन में प्रेस क्लब के भी चंद दोस्त थे जो कैमरामैन थे, उन्हें भी राशन जो है आपकी जमात की जानिब से दिया गया। और सियासी सवाल मैं अब करना चाहूँगा, आपसे इजाज़त दें कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान की मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से इमरान खान की मुलाकात, और प्लस में दूसरा सवाल कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है या उसका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो है वो कौन है? बहुत शुक्रिया। आपने दो सवाल किए हैं और मेरे ख्याल में दूसरा जो सवाल है वो पहले का जवाब है कि जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है, अगर बिलफर्ज कोई मुलाकात हुई भी है जो मेरे इल्म में नहीं है, तो इसका माना यह है कि वो बेनतीजा साबित हुई है। और वो हर इदारे पे हमला कर रहे हैं, फ़ौज पे वो हमला कर रहे हैं, अदालतों पे वो हमला कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर वो हमला कर रहे हैं, पार्लियामेंट पे वो हमला कर रहे हैं। किस इदारे को उन्होंने अब तक माफ़ किया है? अगर इदारा उनके हक़ में चलता है और इदारा उनके हक़ में फ़ैसले देता है तो फिर वो बड़ा इंसाफ वाला इदारा है, और अगर वो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देता है तो वो गद्दार भी हो जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात से वो नवाजते हैं। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है, उसकी सियासत निमट चुकी है, और चंद दिन के लिए जिस तरह एक ज़ख्मी तड़पता है तो वो आखिरी तड़पना तो उसका हक़ है, उसकी कोई मसला नहीं है, लेकिन न हम उससे मरूब हैं, न उसको हम ये हक़ देना चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्री में किसी किस्म की मुदाखलत कर सकेगा। आइन के मुताबिक ये जिसकी ज़िम्मेदारी है वही अदा करेगा, मेरिट की बुनियाद पर अदा करेगा, और वो होता कौन है कि वो हुकूमत से कहे कि आपने कि किसने करनी है। यहाँ कोई अफरा तफरी है, यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, ये कोई मुल्क नहीं है, और ये कोई रियासत नहीं है कि उसके कोई इदारे होंगे, उसका कोई आइनी फ़राइज़ होंगी, आइनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी जो वो पूरी करेंगी। तो हम उनको वाज़ेह तौर पर बता देना चाहते हैं कि तुम लाख चीखो, लाख चिल्लाओ, लाख तड़पो, जो भी करो, जो होगा आइन के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म का इख्तियार है तो वही फ़ैसला करेगा, पार्लियामेंट का इख्तियार है तो वही फ़ैसला करेगा, अदालत का इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो फ़ैसले करते जाएंगे और आपकी चीखो पुकार उन पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। किसी किस्म की वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का अब हिस्सा नहीं है। सर ये बताइएगा, जिस तरह कल मियां जावेद लतीफ़ पर FIR हुई, मरियम औरंगज़ेब पर FIR हुई, पंजाब हुकूमत इदारोों को इस तरह इस्तेमाल करके FIR कर रही है, तो क्या ऐसे इदारे कमज़ोर नहीं हो रहे? पुलिस जैसा इदारा पंजाब हुकूमत खुद कमज़ोर है और शायद वो पलट जाएगी। अच्छा, आज कौमी असेंबली में जो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ उसके ऊपर इंटरनेट पे मजहबी जमातों की खामोशी के ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ, तो ये पुरानी बात है, कोई सन 1918 की बात है, और उस वक्त वल्लाह अलम एक चीज़ पास हुई। इस वक्त तो मेरे ख्याल में जो इंसानी हुकूक जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर कुछ अराकीन गए और उन्होंने इसको मौजू बनाया और उसमें तरामीम भी दी हैं। उससे हाईलाइट ज़रूर हुआ है ये मामला, लेकिन ये मामला आज का नहीं है। जिस तरह बहुत से कवानीन चोरी छुपे बड़ी खामोशी के साथ और ऐसे वक्त में कि जब कोरम भी ना हो, ऐसे वक्त में कि जब दिन आ रहा हो या जुमे का दिन हो, ये पेश कर लिए जाते हैं प्राइवेट मेंबर के ज़रिए से और फिर उसको पास कर दिया जाता है। ये है काबिल मज़म्मत चीज़। और जो कुछ अभी सामने आ रहा है वो है भी कुरान और सुन्नत से बगावत, सिर्फ मुखालफत नहीं है, बिल्कुल बगावत की सूरत है। तो इस पर जमीयत उलमा इस्लाम एक मुस्तकिल तरमीम तैयार कर रही है और उसकी जामे शक्ल जो है वो पेश करेगी ऐवान के अंदर, जो एक बाकायदा तरमीम की हैसियत होगी। जो तरामीम हमारे दोस्तों ने पेश की हैं हमने उसका मुताला किया है, हमारे माहिरीन ने उसका मुताला किया है, वो नाकाफ़ी है, और अगर उन तरामीम के साथ फिर पास हो जाता है तब भी उसकी शरई जो मुखालफत है उसमें फ़र्क नहीं आएगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कानून साजी का कोई हक़ हासिल नहीं है, और ये नई सवाल जो अभी पैदा हुआ है इसमें इंशाअल्लाह हम भरपूर तौर पर कुरान और सुन्नत की
तर्जुमानी करेंगे और उस हवाले से कानून साजी की तरफ पार्लियामेंट को ले जाएंगे। मुल्क के अंदर हड़ताल की वजह से बड़ी तबाही आई है, लोग मदद की दिखा रहे हैं, लेकिन इमरान खान की सियासत वो भी सियासत चमका रहे हैं, जब से कराए। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि सुरक्षा करने वाला जो केस अदालत में चल रहा है, इस दोनों में अपनी हजरत ये सबको चोर चोर कहता है, और ये उसी तरह है जिस तरह के एक चोर जब चोरी करता है तो भागती हुई भी चोर चोर पुकार रहा होता है, ताकि वो लोग समझे कि शायद कोई ये चोर को तलाश कर रहा है, जबकि वो खुद चोर होता है। तो ये तो बैनुल-अक़वामी चोर साबित हुआ है और इम्पोर्टेड चोर है, तो इसका मुहासबा होना चाहिए। और अभी तक उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, मैं खुद अपनी हुकूमत से शाकी हूँ कि वो इस तरह ढील क्यों दे रहे हैं ऐसे मुजरिम को कि जिसने पाकिस्तान के शरीफ सियासतदानों को ज़लील और रुसवा किया। किसके कहने पर रसवा किया? सवाल ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी शख्सियत को फांसी पर लटकाया गया, नवाज शरीफ को कितनी दफ़ा इक़्तिदार से अलहदा किया गया, जेलों में डाला गया, और शहबाज शरीफ को डाला गया, उनके ख़ानदान को डाला गया। अक़वाम मुत्तहिदा को कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई तो उनको तशवीश क्यों हो गई? इसराइली चैनल्स ने इनकी खिलाफ कार्रवाइयों पर क्यों तशवीश का इजहार किया? तो ये किसका नुमाइंदा है? जो हम 13 साल से कह रहे हैं, उसकी हकीकतें सामने आ रही हैं। ये पाकिस्तान का आदमी नहीं है, ये पाकिस्तान के सोच वाला नहीं है, इसको पाकिस्तानी मुआशरे से कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान की आज़ादी किस बात की? IMF से मुआहदा तुमने किया, मुल्क की मईशत उसके हाथ में गिरवी कर दी, मुल्क के असासों को उसके हाथ में गिरवी किया, स्टेट बैंक आपने उनके हवाले किया। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आप कहते हैं हम उनको आज़ादी देंगे। किससे आज़ादी देंगे? कभी कहते हैं अल्लाह से आज़ादी देंगे, कभी कहते हैं रसूलुल्लाह से आज़ादी देंगे। ये है असल एजेंडा उसका। सो ये ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम खुद है, और अब कौम को धोखा देना चाहता है आज़ादी के लफ्ज़ से। कोई आज़ादी वाज़ादी नहीं, इस किस्म के अनासर से हम इंशाअल्लाह कौम को आज़ादी दिलाएंगे और इनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया जी। जामिन नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे भी कहूँ कि ये अपनी इदारों की जो कार्रवाइयाँ हैं और जो रिलीफ इस वक्त हो रहा है उसके बारे में भी ब्रीफ करें। बारिशों से पूरे मुल्क में बिलअमूम और सिंध और बलूचिस्तान में बिलखसूस हमें बेअंतहा नुकसानात का सामना है। कोई भी मुल्क इस कदर तबाही और नुकसानात से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील की। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान का दौरा किया। मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद सेक्रेटरी जनरल ने भी पुरजोर अंदाज में बैनुल-अक़वामी बरादरी से पाकिस्तान की इमदाद के लिए अपील की। हुकूमत पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक में मौजूद हमारे सफारत खानों के ज़रिए से और पाकिस्तान में मौजूद सफारत खानों और मीडिया की मदद से इंटरनेशनल कम्यूनिटी को हालात की संगीनी और ज़रूरियात से आगाह किया, जिसके नतीजे में दोस्त ममालिक से रिलीफ का सामान आना शुरू हुआ। अब तक 20 ममालिक से 114 रिलीफ की फ़्लाइट्स आ चुकी हैं। इनमें से 66 फ़्लाइट्स का सामान नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिसीव किया। मज़ीद 13 फ़्लाइट्स अगले 10 दिनों में प्लान्ड हैं। 114 जो फ़्लाइट्स आई हैं उनमें से 48 फ़्लाइट्स ऐसी हैं जिनमें आने वाले रिलीफ का सामान मुतलका इदारे जैसे USAID, यूनिसेफ, UNHCR और रेड क्रिसेंट ने खुद मुतासरीन तक पहुँचाया। अब तक आने वाली 66 फ़्लाइट्स में से 13 फ़्लाइट्स तुर्किया से, 30 UAE से, 5 चाइना से, 4 ओमान से, 3 फ़्लाइट्स कतर से और एक फ़्लाइट दीगर ममालिक से सामान लेकर आई हैं। मैं ये भी बताता चलूँ कि इन फ़्लाइट्स में सब फ़्लाइट्स सामान नहीं लेकर आती, बल्कि कुछ फ़्लाइट्स ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ डेलीगेशंस लेकर आती हैं या कुछ लॉजिस्टिक्स के इक्विपमेंट प्री डिप्लॉयमेंट के लिए लेकर आते हैं। फ़्लाइट्स में अभी तक आने वाले सामान में 16,938 टेंट्स, 3,000 तरपाल, 37,000 कंबल,
11,000 फूड पैक्स, 182 टन खुश्क राशन, 30 टन अद्वियात और 58 किश्तियाँ शामिल। इन फ्लाइट्स के अलावा तुर्किया से 2 ट्रेन इमदादी सामान लेकर दालबंदीन पहुंच चुकी हैं, जबकि 6 और ट्रेनें इस वक्त रास्ते में हैं। इन ट्रेनों में खेमे, कंबल और राशन पैक्स शामिल हैं। ताजिकिस्तान की तरफ से 86 ट्रकों पर मुश्तमिल एक कॉन्वॉय कल तोरखम के रास्ते पाकिस्तान में पहुंचा। ताजिकिस्तान की तरफ से भिजवाए गए इस सामान में खेमे, खुराक, कंबल, कुछ सीमेंट और चंद एक CGI शीट्स और घरों के अंदर जलाने वाला कोयला शामिल है। तुर्किया, कतर और फ़लस्तीन की तरफ से डॉक्टर्स की टीमें अद्वियात के साथ हमारे पास पहुंची हैं, जो कि फील्ड में इस वक्त इलाज मालजे की सहूलत दे रही हैं। डेनमार्क की तरफ से एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट पहुंचाया गया, जो इस वक्त सिंध में काम कर रहा है। फ्रांस की जानिब से 75 छोटे लेवल के डी वाटरिंग पंप्स आए। कल अमान का एक बहरी जहाज़ इमदादी सामान लेकर कराची पहुंचा है। रिलीफ के इस तमाम सामान को तकसीम करने के लिए वफाकी हुकूमत ने NDMA को गाइडलाइंस दी हैं, जिनमें मुतासरा डिस्ट्रिक्ट की कुल आबादी, मुतासरीन की तादाद, उनकी ज़रूरियात, पहले से दी गई इमदाद, लॉजिस्टिक्स का खर्चा और सबसे अहम चीज़ ट्रांसपेरेंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हकदार का हक उस तक पहुंचाना शामिल है। इस हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा सिंध है, लिहाजा 55 से 60% जो रिलीफ का सामान है वो सूबा सिंध में भिजवाया गया और इसी तनासब से मज़ीद भिजवाया जाएगा। इसके बाद सूबा बलूचिस्तान है, उसके पास 15 से 20% सामान जा रहा है और बकिया सामान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान को दिया जा रहा है। कस्टम क्लियरेंस के बाद ये सामान अफवाज पाकिस्तान के हवाले किया जाता है, जो ज़िला और तहसील की सतह पर मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर मुतासरीन तक ये सामान तकसीम करते हैं। तमाम इमदादी सामान का एक तफसीली रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इमदादी सामान की ये तरसील मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। NDMA मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर इस अहम जिम्मेदारी को बखूबी सरअंजाम देने के लिए दिन रात कोशां है। दोस्त ममालिक से डोनेट किए गए सामान के अलावा NDMA खेमे, मच्छरदानियाँ, राशन पैक्स, डी वाटरिंग पंप्स और पीने का साफ़ पानी ख़रीद कर अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए और डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के जो रैप्स हैं उनके ज़रिए मुतासरा इलाकों तक पहुँचा रहा है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, अवाम और इदारे मिलकर इस आफत का सामना कर रहे हैं। तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाए जा रहे हैं, लेकिन इस आफत का स्केल इतना बड़ा है कि मुतासरीन को इमदाद की मज़ीद ज़रूरत है। जिज़ों की अशद ज़रूरत है उनमें खेमे, खुराक, ख़ास तौर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए खुराक, अद्वियात, हेल्थ सर्विसेज, वैक्सीन्स, फील्ड हॉस्पिटल्स और ख़ास तौर पर आगे आने वाली सर्दियों के लिए कंबल, रज़ाइयाँ और गर्म कपड़ों की अंतहा की बहुत शदीद इनकी जो है ना वो ज़रूरत है। मैं वफाकी हुकूमत, अवाम और NDMA की जानिब से उन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में हमें ये इमदाद भिजवाई। बिलाशुबा इस इमदाद से मुतासरीन की परेशानियों में कमी वाक़या हुई। इस वक्त मुतासरीन को मज़ीद इमदाद की अशद ज़रूरत है, जिसका ज़िक्र अभी एहसन इकबाल साहब ने भी किया है। इसलिए मैं मुल्क में रहने वाले तमाम मुखय्यर हजरात से और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तान अपील करता हूँ कि वो दिल खोल कर अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों और बुज़ुर्गों के लिए रिलीफ का सामान डोनेट करें। याद रहे कि आपकी एक छोटी सी डोनेशन किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सैलाब की हालिया तबाहकारियों के खिलाफ मुत्तहिदा हुकूमत अमली तश्कील देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर NFRCC के क़याम 1 सितंबर को अमल में लाया गया। ये सेंटर सैलाब मुतासरा लोगों के लिए और उनकी बहाली और इमदाद के लिए वन विंडो ऑपरेशन कर रहा है। इसके हमारे साथ
तमाम सूबे, वफाकी इदारे, अफवाज पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन एजेंसीज़ और इसके साथ साथ NGOs हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इदारे मिलकर इस बहुत बड़ी मुसीबत के ख़िलाफ़ काम कर सकें और हम उनका अमल इस अमल में बेहतर कोऑर्डिनेशन के ज़रिए तमाम लोगों तक पहुंच सकें। यकीनन हम तमाम तक शायद अब तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारी कोशिश अभी भी जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम तमाम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, ACs और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के रेप्स के साथ बातचीत करते हैं। इसमें कुछ काम हम कर चुके हैं और कुछ कामों पे अभी भी बहुत और वक्त चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है मुतासरा सड़कें और रेल की बहाली और पुलों की तामीर है। बलूचिस्तान प्रोविंस जो आज से 1 महीना पहले कोई भी नेशनल हाईवे नहीं चल रही थी, इस वक्त तमाम कनेक्टिविटी बहाल हो चुकी है। ML1 जो पाकिस्तान की मेन रेलवे लाइन है, उस पर हालांकि 2 जगहों पर 8 से 10 इंच पानी खड़ा है, इसके बावजूद उसके ऊपर रेलगाड़ी चल रही है। पैसेंजर ट्रैफिक भी बहुत वेरी सून बहाल हो जाएगी। इसके साथ साथ मुतासरा इलाकों में खुसूसी तौर पर और मुल्क में अमूमी तौर पर खुराक की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गंदम के स्टॉक्स हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। पिछले साल आज ही के दिन पाकिस्तान में 6.1 मिलियन टन गंदम थी। आज के दिन हमारे पास 7 मिलियन टन गंदम मौजूद है और 1 और मिलियन टन आ रही है। तो गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है और ना शॉर्टेज होने का कोई सवाल है। हमने इस सैलाब से मुतासरा इलाकों में ये भी चेक किया है कि पास्को, सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो साइलोज बने हुए थे वहाँ गंदम के क्या हालात हैं, तो उसमें लॉसेस वेरी नॉमिनल, बहुत ही थोड़े, कई जगहों पर 3% और ज़्यादातर जगहों पर इससे भी कम लॉसेस हैं, जिससे हमें यकीन है कि हमें गंदम पहुंचाने और आटा लोगों तक पहुंचाने में मसाइल नहीं होंगे। इसमें जो लोग होर्डिंग या इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं, कार्टलाइजेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हुकूमत एक्शन करेगी, क्योंकि हमारे पास इस किस्म की तमाम ग़िज़ाई अजनास की वाफिर मिकदार मौजूद है, ख़ासकर गंदम। इसके साथ साथ एक और चीज़ जिस पे हमें बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं वो है कि हम ये चाहते हैं कि गंदम की फसल जिसने अक्टूबर में लगना है वो हम लगा सकें सिंध के अंदर। उसमें पानी की निकासी जारी है बहुत सारी जगहों पे। हमारा ये ख्याल है कि सिंध का ज़्यादातर हिस्सा गंदम के काबिल हो जाएगा। उन इलाकों के लिए हम सीड भी प्रोक्योर करेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी दरख्वास्त की जाएगी कि वो हमें इन इलाकों में गंदम उगाने के लिए सीड प्रोवाइड करें। हमारे पास इस वक्त सीड की थोड़ी सी शॉर्टेज है जो इंशाअल्लाह जब गंदम लगेगी तो पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ जिन इलाकों में पानी होगा उनमें हम कोशिश करेंगे कि सूरजमुखी की सीड प्रोवाइड की जाए, लोगों को सूरजमुखी का बीज दिया जाए ताकि उन इलाकों में ये फसल लग सके। उससे भी पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा। मुतासरा इलाकों में सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मलेरिया और इससे दूसरी जो बीमारियां हैं उसके खिलाफ भी काम कर रहे हैं। और जैसा कि एहसन साहब ने दरख्वास्त की है कि हमें 2 मिलियन पैक्स अगर नौज़ायदा बच्चों और उनकी माओं के लिए मिल जाएंगे तो इस इलाके में एक बहुत बड़ी मदद होगी। हम उस पैक के बारे में ट्विटर और बाकी जगहों पर आज ही इंशाल्लाह पैक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बता देंगे। और इसमें जो भी पैक्स बनाता है वो पाकिस्तान आर्मी के कलेक्शन सेंटर्स में अगर जमा कराएंगे तो आगे की लॉजिस्टिक्स इंशाल्लाह हम संभालेंगे। और ये भी मैं आपको यकीन दिलाता चलूँ कि हम जिन लोगों को ज़रूरत है उनको इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। और अगर कोई शख्स खुद ज़्यादा पैक्स लेके जाना चाहता है तो हम उसकी भी मदद करेंगे वहाँ तक पहुँचाने में। और दूर दराज इलाकों में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि खुराक और पानी
پہنچتا رہے اور ملتا رہے. صاف پانی مہیا کرنے کے لیے بھی ہم نے فلٹریشن پلانٹس اور دوسرے وفاقی وزیر احسن اقبال چیئرمین NDMA اور چیئرمین NFRCC پریس کانفرنس کر رہے ہیں.